Very good morning, students of class 10th. Here I am Poonam Prasad, again with the rise of nationalism in Europe of your sub-subject history of your social science. Students, today we are going with the topic that is unification of Germany with the role of Bismarck. बेटा हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ा about the role of women, beginning of the change in the European during that period of time. We also came across with the Frankfurt of Assembly 1848, why it was eroded. हम लोगों ने इस रीज़न पे भी बात की थी. Students, again एक recapitulation of that particular point, that is Frankfurt Assembly. That Frankfurt Assembly and Constitution was drafted actually, but it was failed. It was failed. Why it was failed? Because as a it means the representatives, they offered the office of emperor to the Prussian ruler Frederick William IV, but he refused to accept the office of emperor because his chief minister William I has appointed Bismarck as the chief minister and foreign minister of Prussia. He advised Frederick William IV not to accept the crown of shame. Why? Because it was offered by the elected representative. Children of Frederick William IV, they believed in the divine rights of the king. So his chief minister Bismarck, he advised him not to accept the crown of shame because it was offered by the elected representatives. Simple example मैं आपको ये देना चाहती हूँ, जैसे जिस तरह से हमारे जो कहते हैं ना समाज में प्रोटोकॉल्स निर्धारित है. कैसे अगर आपने अपने फ्रेंड के फादर मदर को इनवाइट किया कि अंकल आंटी जी आप आइए हमारे बर्थडे पे, तो शायद वो अपने बच्चों को तो भेज देंगे आपके बर्थडे पे, लेकिन वो खुद नहीं आएंगे. बट वहीं पे अगर आपके मम्मी पापा ने उनको आपके फ्रेंड के मदर फादर को इनवाइट किया तो डेफिनेटली वो आएंगे, है ना. तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड इट एज व्हाट, एक प्रोटोकॉल है. तो यहाँ पे एम्परर ऑफ प्रुशिया को इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने क्या किया बेटा, उन्होंने क्या कहते हैं, उन्होंने इनवाइट किया नॉट द प्रोटोकॉल्स फ्रॉम द हायर पोजीशन बेटा. तो अल्टीमेटली इट वाज कंसिडर्ड एज अ क्राउन ऑफ शेम, और यही कारण था कि बिस्मार्क ने एडवाइस किया फ्रेडरिक विलियम IV को नॉट टू एक्सेप्ट द क्राउन ऑफ शेम. फाइन स्टूडेंट्स, एंड बाय दैट जो एक मंशा थी लिबरल्स की टू यूनिफाई द कंट्री इनटू द नेशन स्टेट और टू यूनिफाई द जर्मनी ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, वो अल्टीमेटली इट गॉट एरोडेड. वो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की स्टैब्लिश करना चाहते थे, वो अल्टीमेटली नहीं हुआ. वो चाहते थे पावर्स एम्परर्स ऑफ द प्रुशिया को देना, लेकिन वो अल्टीमेटली नहीं हुआ. और इस तरीके से जो लिबरल्स का एम था टू यूनिफाई द जर्मनी इनटू अ नेशन स्टेट, वो इट वाज नॉट फुलफिल्ड एंड इट वाज एरोडेड. सो चिल्ड्रन, इन टुडेज topic we are going to start with the unification of Germany and the role of Bismarck. Let's we talk on it. After 1848 nationalism, the idea was drifted, it means shifted from its association with democracy and revolution. Nationalist sentiments were mobilized by the conservatives for promoting state power and achieving political dominance over Europe. Conservatives, it means हु, जो कि कंजर्वेटिव्स रिजीम्स में ऑलरेडी बताती थी, जो कि मोनार्कियल जो स्टेट पावर्स है मोनार्कियल यानी किंग रूल को वो एक्सेप्टेंस चाहते थे. तो उनके नज़र में द स्टेट शुड बी यूनिफाइड, लेकिन वो लिबरल्स नहीं करेंगे. कौन करेगा? कंजर्वेटिव्स करेंगे. और कंजर्वेटिव्स क्यों चाहते थे यूनिटी और टू यूनिफाइड? टू प्रमोट स्टेट पावर. इट मीन्स अगर चीज़ें यूनिफाइड होंगी तो वो और ज़्यादा स्टेट मजबूत होगा, और कहीं ना कहीं दे वांटेड टू गेट अ
पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑल ओवर द यूरोप बेटा। तो ये इसी मंशा के साथ कंजर्वेटिव्स ने जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स थे उसको जो एक लिबरल्स के मन में नेशनलिस्ट फीलिंग्स थी यानी टू यूनिफाइड, उसको हटा के who has taken initiative, conservatives has taken initiative to unified the nation state। यहाँ पे किंग्स ने, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर्स ने, यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेट्समैन ने अल्टीमेटली they pioneered, or you can say they took initiative to unify the Germany into, loose Germany into a nation states। Students, in Prussia, William I became the ruler in the year of 1861. Who? Prussia. Prussia, Austria was considered as a very strong, you can say, states at that time. So in Prussia, William I became the ruler on the year of 1861. Let's we have a very brief about that William I। he was very conservative, deeply conservative means वो अपने आइडियोलॉजीज़ को, कंजर्वेटिव आइडियोलॉजीज़ को नहीं बदलना चाहते थे, लेकिन वो यूनिफिकेशन चाहते थे। बट वो यूनिफिकेशन किंग के द्वारा हो, एम्परर के द्वारा हो, एम्परर के गाइडेंस में हो, या आर्मी, एम्परर आर्मी के द्वारा हो, या आर्मी ऑफ द स्टेट के द्वारा हो, ना कि लिबरलिस्ट के द्वारा, ना कि रिवोल्यूशनरीज के द्वारा हो। ठीक है। सो ही वॉज डीपली कंजर्वेटिव एंड रिगार्डेड किंगशिप एज अ डिवाइन ड्यूटी। he knew his responsibilities towards the, you can say, towards the nation. He believes in the national mission of Prussia to unify the German states. He knew very well that Prussia should take initiative to unify the German states. That is, Prussia took initiative to unify German states. This can also be observed in the process by which nationalist feelings became widespread among the middle class Germans. हम लोगों ने फ्रैंकफर्ट असेंबली में ऑलरेडी वी केम अक्रॉस विद दैट, जो 1848 में चाहते थे नेशनलिस्ट फीलिंग्स के साथ, राष्ट्रीयता के साथ जो लोग थे, जो मिडिल क्लास लोग थे, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास पीपल थे, जो लिबरल्स थे, वो चाहते थे यूनिफाइड करना जर्मनी को। लेकिन उनके इन आइडियाज़ को, उनके इन मिशन को, अल्टीमेटली उन लिबरल इनिशिएटिव्स को जो पार्लियामेंट इस्टेब्लिश करना चाहते थे, वो पार्लियामेंट जो कि यानी कि कंट्री शुड बी रूल्ड बाय द पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में भी रिप्रेजेंटेटिव शुड बी इलेक्टेड बेटा। तो कहीं ना कहीं जो सफ्रेज को सपोर्ट कर रहे थे, यानी राइट टू वोट को, वो अल्टीमेटली इट वॉज सप्रेस्ड बाय द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ monarchy, army and landed group. That army or that combined forces of monarchy, army and landed aristocracy was known as Junkers of Prussia. Fine students, one word question, very important one word question. Who were known as the Junkers of Prussia? Your answer should be the combined forces of monarchy, आर्मी एंड लैंडेड एरिस्टोक्रेसी। यानी कि लिबरलिस्ट फीलिंग्स को दबाने के लिए, रिवोल्यूशनरीज आइडियाज़ को दबाने के लिए, जो उन्होंने यूनिफिकेशन के बारे में कहा, जो वो चाहते थे कि द लूज जर्मन फेडरेशन वो यूनिफाइड हो, उसको सप्रेस, उसको दबाया गया। किसके द्वारा? सेना के द्वारा, सैन्य, जो राजा के सैन्य बल थे उनके द्वारा, और ख़ासकर जो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी जिसको हम लोग कहते हैं ज़मींदारी, जो ज़मींदार थे, उनके कंबाइंड फोर्सेस ने अल्टीमेटली जिसको हम लोग कहते हैं जंकर्स ऑफ प्रूशिया, दे सप्रेस्ड द फीलिंग ऑफ लिबरल्स, जो लिबरल्स ने इनिशिएट किया था टू यूनिफाइड द जर्मनी। प्रूशिया टुक अप द लीडरशिप ऑफ मूवमेंट for unification, national unification. So who had taken initiative
Prussia has taken initiative, यानी the ruler of Prussia has taken the initiative to unified the Germany. Student, most important question आपका आता है Bismarck, his role in unification. So we have to talk on who was Otto von Bismarck. William I has appointed Otto von Bismarck as the chief minister and foreign minister of Prussia, children. He was the most efficient statesman of modern world. Students, जैसे हम कहते हैं अपने एंशियंट पीरियड ऑफ टाइम में हमने चाणक्य नीति के द्वारा किस तरह से एक बहुत बड़े समाज, एक बहुत बड़े साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य का गठन हुआ, उसी तरीके से बिस्मार्क के द्वारा जो 39 कन्फेडरेशन में डिवाइडेड था यूरोप, जर्मनी, उसको किस तरीके से बाइंड किया गया, उनको किस तरीके से एक यूनिफाइड किया गया इनटू आवर नेशन स्टेट. तो अगर हम बिस्मार्क के बारे में कहें, हु वाज ही वाज अ चीफ मिनिस्टर, ही वाज अ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ प्रूशिया, वेरी एफिशिएंट पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स, ही वाज कॉल्ड एज ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड. हमारे कंट्री में भी मॉडर्न इंडिया यानी मॉडर्न हिस्ट्री में यू हैव नो अबाउट सरदार वल्लभ भाई पटेल, किस तरीके से उन्होंने भारत को एकजुट यानी भारत को यूनिफाइड करने में जो उनकी अहम भूमिका रही है, जो उनकी नीतियाँ रही हैं, तभी उनको क्या कहा गया, द आयरन मैन ऑफ इंडिया. बेटा, तो कहीं ना कहीं जब भी यूनिफिकेशन होता है तो उसमें ऐसे व्यक्तियों का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है जो ना सिर्फ लॉजिकली सोचते थे, बट यस, उन्होंने जो सोचा वो अल्टीमेटली जो इनिशिएट किया उसका जो रिज़ल्ट था वो बहुत ही पॉजिटिव गया. लेकिन यहाँ पे बिस्मार्क ने एक पॉलिसी को अडॉप्ट किया फॉर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. सो ही रियलाइज दैट, लेकिन इससे पहले he enlarged, re-equipped and recognized the Prussian army because he adopted a policy of blood and iron to achieve his objective of unification of Germany, children. वो जर्मनी के को यूनिफाइड करना चाहते थे. इसके लिए उन्होंने एक पॉलिसी को अडॉप्ट किया और वो पॉलिसी थी ब्लड एंड आयरन. 1 मार्क्स का बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा. ब्लड मीन्स स्ट्रॉन्ग आर्मी और आयरन का मतलब होता है मॉडर्न वेपन, यानी उन्होंने प्रूशियन आर्मी को मॉडर्न वेपन से इक्विप्ड किया. उन्होंने अपनी प्रूशियन आर्मी को स्ट्रॉन्ग बनाया और कॉन्टिन्यूएशन में वो वॉर चाहते थे, क्योंकि उनके नज़र में विदाउट वॉर द टेरिटरीज वर नॉट कैप्चर्ड, और वो टेरिटरीज़ को कैप्चर नहीं कर पाएंगे. और अल्टीमेटली क्योंकि एट द टाइम जो टेरिटरीज़ थी वो लोकल रूलर्स और डिफरेंट फॉरेन रूलर्स के अंडर में थी, तो उन फॉरेन रूलर्स को अल्टीमेटली जब तक नहीं हराएंगे तब तक हम उन एरियाज़ को, उन टेरिटरीज़ को कंट्रोल में नहीं लेकर आएंगे. और यही इसी सिद्धांत के साथ, इसी एम के साथ अल्टीमेटली बिस्मार्क हैज़ स्टार्टेड the unification of Germany. So he enlarged, re-equipped and recognized the Prussian army. He realized that Austria was the main enemy of Germany. बेटा, उन्होंने ये माना कि जब तक जर्मन यूनिफिकेशन पूरा नहीं होगा, जब तक कि ऑस्ट्रिया आपके कन्फेडरेशन में रहेगा, क्योंकि प्रूशिया की तरह ऑस्ट्रिया भी एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर था एट दैट टाइम. तो ऑस्ट्रिया जब तक नहीं हटेगा कन्फेडरेशन से, उसका कंट्रोल अगर जर्मन कन्फेडरेशन से नहीं होगा, हटेगा, तब तक अल्टीमेटली प्रूशिया यूनिफाइड नहीं कर पाएगा जर्मनी को. तो फर्स्ट उनका एम, किसका एम, बिस्मार्क का एम था दैट ऑस्ट्रिया वॉज द मेन एनिमी ऑफ जर्मनी
and Austria should be expelled from the Confederation. Let's, children, we talk about the process of unification of Germany. यहाँ पे continuation में war चलेगा बेटा. So let's we have to talk on different wars during that period of time in a different year. First war was called as Prussia-Denmark War 1864. बेटा ज़रा ध्यान से इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को पढ़िएगा. War with Denmark when 1864. To achieve his object, here his means who? Bismarck. बिस्मार्क का ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑस्ट्रिया को हटाना. किससे? जर्मन कन्फेडरेशन से, है ना, क्योंकि उनके नज़र में ऑस्ट्रिया वॉज अ ग्रेट एनिमी ऑफ प्रूशिया, और ऑस्ट्रिया के रहते जर्मनी कभी भी यूनिफाइड नहीं होगा. ऐसा कौन मानता था? ऐसा मानते थे बिस्मार्क. लेकिन उनको था मुद्दा चाहिए था, उनको कोई टॉपिक चाहिए था जिस टॉपिक पे वो किसी ना किसी तरीके से इन्वायरमेंट क्रिएट करे और वो ऑस्ट्रिया को किसी ना किसी दाव पे या किसी बात पे उसको वो इतना प्रेशराइज करे कि ऑस्ट्रिया या तो वो खुद लड़ने के लिए तैयार हो जाए या वो कन्फेडरेशन से खुद हट जाए. तो ही पिक्ड अप, सबसे पहले उन्होंने एक वॉर 1864 में उन्होंने रचा उस वॉर की, और उसकी पृष्ठभूमि क्या थी? ही पिक्ड अप अ क्वेरल विद डेनमार्क. उन्होंने लड़ाई डेनमार्क किसके ऊपर? एक बहुत पुराना 2 डचेस हुआ करते थे, मैंने प्रांत बताया ऑलरेडी. दैट नेम वॉज कॉल्ड एज शेल्सविक एंड होल्स्टेन. नेम ऑफ द रीजन्स, कौन कौन से रीजन्स थे बेटा? शेल्सविक एंड होल्स्टेन, ये 2 डचेस थे. इन दोनों पे लड़ाई हुई. किसके साथ? प्रूशिया के, डेनमार्क के साथ. कंबाइंड फोर्सेस ऑफ प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया. उन्होंने क्योंकि डेनमार्क ऑस्ट्रिया को हराने के लिए पहले प्रूशिया यानी बिस्मार्क ने प्रूशिया को दोस्त बनाया ऑस्ट्रिया का, और दिमाग में क्या चल रहा है बिस्मार्क के? मुझे ऑस्ट्रिया को एक्सपेल करना है, लेकिन मैं सीधे तरीके से लड़ूंगा नहीं, लेकिन मैं घुमा के लड़ूंगा. तो घुमाने के लिए उन्होंने सबसे पहला वॉर किससे किया? डेनमार्क. और सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने डेनमार्क को हराने के लिए ऑस्ट्रिया का ही सपोर्ट लिया. उन्होंने डिफीट किया डेनमार्क को इन द ईयर ऑफ 1864. ध्यान दीजिएगा बेटा. 2 डचेस, कौन से 2 डचेस? शेल्सविक एंड होल्स्टेन. प्रूशिया ने शेल्सविक अपने पास रखा और ऑस्ट्रिया को होल्स्टेन दे दिया. किसके लिए? टू एडमिनिस्टर, शासन के लिए, शासन प्रणाली को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए. सत्ता जो प्रूशिया ने ली अपने हाथों वो था शेल्सविक, और ऑस्ट्रिया को दे दिया होल्स्टेन. अगेन just see the brain, just analyze the brain of Bismarck. अपने ग्रेट एनिमी ऑस्ट्रिया को हराने के लिए सबसे पहले ऑस्ट्रिया का ही उन्होंने साथ लिया. डेनमार्क को हराया 1864 में. 1866 में वॉर विद 1866 में उन्होंने वॉर लिया ऑस्ट्रिया के साथ. 1866 में मुद्दा था शेल्सविक एंड होल्स्टेन. अगेन शेल्सविक एंड होल्स्टेन was the question of first a pretext to pick up a quarrel with Austria. जिस डचेस पे उन्होंने जिन मुद्दों पे उन्होंने डेनमार्क से लड़ाई की थी, उन्हीं मुद्दों पे अब उन्होंने ऑस्ट्रिया से लड़ाई की. Bismarck has created an environment in such a way in which Austria declared the Austro-Prussian War when
इन द ईयर ऑफ 1866। अल्टीमेटली क्या हुआ, ऑलरेडी प्रूशिया अपना आर्मी स्ट्रॉन्ग बना चुका था और कहीं ना कहीं उन्होंने 1866 में अल्टीमेटली किसको हरा दिया, उन्होंने हराया ऑस्ट्रिया को। और इस तरीके से ऑस्ट्रिया के पास जो जर्मन क्षेत्र थे उसको उन्होंने फ्री कराया और नॉर्थ जर्मन कन्फेडरेशन को कंप्लीट किया। कुछ ऐसे स्टेट्स थे जर्मन कन्फेडरेशन के जिन्होंने प्रूशिया को सपोर्ट किया। द वॉर ऑल्सो रिजल्टेड इन द एंड ऑफ ऑस्ट्रियन डोमिनेंस ऑफ जर्मन स्टेट्स। बेटा यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन नहीं है बेटा, यहाँ पे क्या है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड इट एज ऑस्ट्रियन, ठीक है ना, यहाँ पे ऑस्ट्रियन वर्ड है। ऑस्ट्रियन डोमिनेंस ओवर जर्मन स्टेट, जो ऑस्ट्रिया का डोमिनेंस था जर्मनी के लूज जर्मन कन्फेडरेशन पे, उससे उन्होंने उसको हटाया और इस तरीके से उस पर अपना कब्ज़ा स्थापित किया। तो जैसे मैंने पहले ही कहा कि लोकल रूलर्स में डिवाइडेड था, उन लोकल रूलर्स को हटाना या फॉरेन रूलर्स को हटा कर ही जर्मनी को यूनिफाइड किया जा सकता था। द जर्मन स्टेट्स, देर आर सम जर्मन स्टेट्स जो कि इंडिपेंडेंट थे, बेडन, विटनबर्ग एंड बवेरिया। दे रिमेन्ड इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट रहे, लेकिन उन्होंने सैन्य समझौता किया था किसके साथ, प्रूशिया के साथ, यानी एक तरीके से इनडायरेक्टली दे सपोर्टेड प्रूशिया। पहला डेनमार्क वॉर 1864, दूसरा ऑस्ट्रिया वॉर, प्रूशिया ऑस्ट्रिया वॉर कब हुआ, 1866, और जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे वो अल्टीमेटली किसके हाथों में आए, प्रूशिया के। बिस्मार्क हैड ओवरकम ऑस्ट्रियन रेजिस्टेंस टू आइडिया ऑफ यूनिफाइड जर्मनी थ्रू मिलिट्री विक्ट्री। और अगर ऑस्ट्रियन उठने की भी कोशिश कर रहे थे तो उनको अपने सैन्य द्वारा उसको दबा दिया जा रहा था। स्टूडेंट्स, जर्मनी ने या बिस्मार्क ने या प्रूशिया ने जर्मन नेशन को एकजुट करने के लिए जो पद्धति अपनाई, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, उसने अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जो जर्मन नेशनलिज्म की फीलिंग थी उस जर्मन नेशनलिज्म की फीलिंग को कम किया बेटा, क्योंकि मिलिट्री विक्ट्री इज़ नॉट इक्वल टू द, यू कैन से, द नेशनल फीलिंग्स, इट कैन नॉट जनरेट द नेशनल फीलिंग्स। वो कहीं ना कहीं एक टफनेस लेकर आएगी, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही बोला था कि राष्ट्रीयता की भावना कहीं हमारे इमोशन से जुड़ी होती है, हमारे फीलिंग से जुड़ी होती है। सेक्रीफाइस, डिवोशन, डेडिकेशन आता है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हम दूसरे को जीत कर ही अपने में मिलाना, एक ये यूनिफिकेशन था। स्ट्रॉन्ग आर्मी के द्वारा ही मिलाना अपने में एक यूनिफिकेशन था। तो यहाँ पे राष्ट्रीयता की भावना, यानी अगर हम ये कहें कि हमें गेम जीतना है और उस गेम को जीतने के लिए अगर हम बाय हुक एंड क्रुक इस्तेमाल करें अपने मेथड्स को, तो बेटा वो जीत तो होगी, लेकिन उसके अंदर खेलने का जो जज्बा होगा वो कम होगा। उसी तरीके से हम अगर इसमें बात करें कि नेशनलिज्म की भावना जो कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस, डिवोशन या जो फीलिंग्स आती है, जो इनर फीलिंग्स होती है, जो इमोशन से जुड़ी होती है, उसको नहीं अडॉप्ट किया गया, उसको नहीं इंक्लूड किया गया। हाँ, नेशन स्टेट को स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्योंकि अगर नेशन स्टेट स्ट्रॉन्ग होगा तो कहीं ना कहीं डोमिनेंस दिखेगा टेरिटरीज पे, कहीं ना कहीं फॉरेन लैंड पे अपना डोमिनेंस दिखाई देगा, जो उन्होंने किया भी। किसने? बिस्मार्क ने और उनकी स्ट्रॉन्ग आर्मी ने। द लास्ट फ्रैंको प्रूशियन वॉर एंड complete unification of Germany in the year of 1871. स्टूडेंट्स, बिस्मार्क जानते थे कि उनका सबसे बड़ा मिशन क्या था? ऑस्ट्रिया को हराना, जो वो हरा चुके, कन्फेडरेशन से एक्सपेल करना वो कर चुके, लेकिन अब वो जानते थे
कि इतना सब कुछ हो गया, लेकिन अभी भी नेपोलियन थ्री के द्वारा, वो नेपोलियन थ्री जो कि बने कब 1848 फ्रांस के एम्परर है ना, वो कहीं ना कहीं अपोज ज़रूर करेंगे इस यूनिफिकेशन को। तो उन्होंने अगेन ऐसा कुछ इन्वायरमेंट क्रिएट किया जो अल्टीमेटली फ्रैंको प्रूशियन वॉर स्टार्ट हुआ। डिफीट, ऑलरेडी बिस्मार्क अपनी सेना को स्ट्रॉन्ग कर चुके थे, फ्रांस डिफीट हुआ और फ्रांस के द्वारा जितने जीते हुए टेरिटरीज थे उसको बिस्मार्क ने अपने में इनकॉर्पोरेट किया into a German states. German defeated the French armies and captured the French emperor. North German Confederation from the German Empire in 1871. जो North German Confederation था, it formed the German Empire in 1871. 3 wars. Denmark, war with Denmark, war with Austria, war with France. इसने कहीं ना कहीं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी को स्टैब्लिश किया। ऑन जनवरी 1871, the proclamation of German Empire in the Hall of Mirrors in the Palace of Versailles, exactly 170 years after the founding of Kingdom of Prussia. German princes and senior military commanders, they proclaimed William I. Student, the word is Kaiser William. German princes and senior military, they proclaimed William I, German prince, William Kaiser, that is the name William I, Kaiser William I, as the emperor in the Hall of Mirror. The Franco-Prussian War has affirmed Bismarck and Prussia as a leader of United German State. Bismarck was the first chancellor of unified Germany. Why? Because he transformed Germany from loose confederation to a federal nation state. 39 confederation में divided था. It was enacted and during, उसको छुआ नहीं गया 1815 Congress of Vienna के तहत. So वो loose confederation को initiate किया गया to unified into a nation state by Bismarck, or you can say the Prussian foreign minister and chief minister under the guidance of William I. The Prussian emperor, Prussian king, ultimately उनको unified German का king घोषित किया गया in the Hall of Mirror in the year of 1871, January 18. Students, Bismarck adopted the policy of blood and iron. 1 marks का क्वेश्चन पूछा गया है. To achieve his objective of unification of Germany, blood meant or means a strong army, and iron meant MEANT, modern weapons. It means continuation war with a strong army and with modern equipments or modern weapons, ultimately capture the territories, or you can say free the territories from the hands of the foreign rulers, and ultimately combine into a one nation, and that was called as unification of Germany, children.